Good evening, students. This is Ranjan. Welcomes you on our new YouTube channel, Science Study Center and Young Minds Academy. Okay. Now the question arises. First question arise होगा कि वो पुराने चैनल पे आप क्यों नहीं? So students, आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो, केमिकल बॉन्ड पढ़ोगे, सारी चीजें पढ़े हुए हो, तो ये फालतू के क्वेश्चन आपको पूछना नहीं है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. ठीक है. आप लोगों को 2 दिन क्लासेस डिस्टर्ब हुई. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. आई विल श्योरली कवर अप द स्किप्ड क्लासेस इन कमिंग लेक्चर्स. ओके, सैटरडे संडे में इंक्रीज करेंगे. ओके, सो आई थिंक इन मैथ्स वी वर स्टडीइंग द चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, तो एपी में लाइव क्लासेस फर्स्ट क्लास अटेंड किया था, बेसिक बातें व्हाट इज एन एपी, एंड ऑल्सो वी solved some questions based on the formula of general or nth term of an AP. Okay, students. Now today we have to move next questions. Move towards the next questions. आज आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है, कल से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी. रिकॉर्डेड क्लासेस, जो लेक्चर्स आपके नहीं हुए हैं वो सारे रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको इस चैनल पे मिल जाएगा. ओके, यंग माइंड्स एकेडमी, यू नो दैट इन प्रयागराज this coaching is for 6th to 10th ICSC CBSE boards along with NTSC and Olympiads. And Science Study Center, this coaching is also in Prayagraj for 11th 12th come IIT, JEE and NEET. Okay, so here is a joint collaboration. You will get everything, every solutions, every materials, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा. Just one promise you have to make, you have to keep your studies regularly. Okay, so students, let us start with questions. nth terms सभी को पता होगा, AP भी पता होगा. जिसने क्लास नहीं लिया है, फर्स्ट क्लास मिस किया है, he or she will get the recorded lectures by tomorrow. Okay, so students, we had read the general or nth term of an AP, and the nth term of AP was given by the formula a plus n minus 1 into t. So a is the first term, n is the number of terms, d is the common difference, and tn is the nth term. Okay, you are now familiar with these symbols and their meanings. Okay, consecutive terms of AP, if it is asked consecutive terms of AP, so this is a plus t, a plus 2d, a plus 3d, so on. Okay, so first term is a, second a plus t, third a plus 2d, fourth a plus 3d and so on. ओके, ये भी यहीं से डराइव हुआ है बच्चों. ये Tn का फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी T1. फर्स्ट टर्म क्या होगा, n की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करोगे, दिस इज a. व्हाट विल बी द सेकेंड टर्म, 2 पुट करोगे, 2 माइनस 1, दिस इज d. थर्ड टर्म क्या होगा, 3 पुट करोगे, a प्लस 2d. ओके, सो इट इज क्लियर, जो टर्म फाइंड करना होगा हमेशा उससे कम कॉमन डिफरेंस होगा प्लस फर्स्ट टर्म. सो इफ इट इज आस्क्ड व्हाट इज 19 टर्म, दिस इज a प्लस 18d. व्हाट इज 38 टर्म, a प्लस 29d. एंड व्हाट इज 48 टर्म, दिस इज a प्लस 39d. सभी को क्लियर होगा. नाउ वी हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चंस. दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. These questions are also formula. इन फॉर्मूले पे बेस्ड एप्लीकेटिव क्वेश्चंस आपको मिलते हैं बच्चों. NTSC ओलंपियाड्स क्वेश्चंस बड़े अच्छे होते हैं. यू कैन डायरेक्टली आंसर देम विदाउट यूजिंग पेन. बिना सॉल्व किए आप आंसर दे लोगे, बट योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. सो लेट अस सी such questions. The first one is mth term of an AP is 1 by n and nth term is 1 by m. We have to find the mth term. So very easy. Find क्या करना है आपको, ये सोचना है. So students, nth term का फॉर्मूला a plus n minus 1 into d होता है.
सिमिलरली mth टर्म का फॉर्मूला a प्लस m माइनस 1 इंटू डी. So we can find the value of mth term if we are able to find the value of a and d. So first of all we have to find a and d, then we easily can find mth term. अब a और d फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स कंडीशंस दिए हैं क्वेश्चन में. So in the question it is given that mth term of an AP is 1 by n. Okay. So students mth term क्या होगा, a plus m minus 1 into d. क्लियर होगा. And mth term is given 1 by n. So this is 1 by n. Nth term is given 1 by m. So this is a plus n minus 1 into d and 1 upon m. Clear? Now we have two simultaneous equations. First one is a plus m minus 1 into d 1 upon n. बहुत ही ध्यान से देखना है बच्चों, बहुत ही. जैसे ये डेरिवेशन क्लियर होगा आसानी से आप ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. ओके. साइन ऑपोजिट किया, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, d is common, so this is m minus 1 minus n minus minus plus 1, and this is 1 upon n 1 upon m. Plus minus cancel, m minus n is common, LCM mn होगा स्टूडेंट्स. n से n कैंसिल m और m से m कैंसिल n हो जाएगा. दिस कैंसिल्स. नाउ d की वैल्यू 1 अपॉन m mn. नाउ सब्सटीट्यूटिंग d इन इक्वेशन 1 और 2, किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं स्टूडेंट्स. 1 में सब्सटीट्यूट किया, सो इक्वेशन 1 इज a प्लस m माइनस 1 इंटू d 1 अपॉन n. सो स्टूडेंट्स d इज 1 अपॉन mn 1 बाई n. a प्लस m अपॉन mn मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन mn को m से, एंड दिस इज 1 अपॉन mn 1 अपॉन n. कैंसिल हो गया, सॉरी m कैंसिल्स m. सो हियर इज 1 अपॉन n 1 अपॉन mn इज इक्वल्स टू 1 बाई n. नाउ स्टूडेंट्स प्लस प्लस कैंसिल, सो वैल्यू ऑफ a इज 1 upon mn. Now we have find the value of d and a. I think it is clear to everyone. Now students we have to find mth term. Clear है यहाँ तक सभी को? mth term 1 by n था, nth term 1 by m. So students mth term की वैल्यू a plus m minus 1, nth term a plus n minus 1 into d. वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, टू इक्वेशंस है, कोफिशिएंट सेम था, a कैंसिल, d कॉमन, दिस इज m माइनस 1. नाउ इट्स साइन इज माइनस, सो माइनस n माइनस माइनस प्लस 1. दिस इज 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m. प्लस माइनस 1 कैंसिल स्टूडेंट्स, m माइनस n, और यहाँ पे भी m माइनस n कैंसिल, d की वैल्यू 1 अपॉन mn इक्वेशन 1 में पुट किया, a की भी वैल्यू 1 अपॉन mn. नाउ वी हैव टू फाइंड mth term. So this is a plus mn minus 1 into d. a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 1 by mn. d की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 1 by mn. Now let us simplify. 1 upon mn, mn upon mn किया, क्लियर है? 1 by mn को mn से मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 अपॉन mn. ठीक है, प्लस 1 अपॉन mn माइनस 1 अपॉन mn कैंसिल, दिस इज mn अपॉन mn, ये भी कैंसिल 1. सो mnth टर्म इज 1. सो mnth टर्म इज 1. mnth टर्म क्या होगा स्टूडेंट्स? अभी सीख रहा हूं, नया बोर्ड है. mnth टर्म इज 1. Now I think you are getting some relation. Use your own brain. mth term is 1 by n, ठीक है, and nth term is 1 by m. रेसिप्रोकल है ना स्टूडेंट्स? देखो mth term दिया है 1 by n और nth term है 1 by n. Now the term of their product mnth क्या होगा? हमेशा 1 आएगा. कैसे होगा ये आपने देखा, तो हमेशा याद रखना है. You have to keep in your mind that suppose
सिक्स्थ टर्म इज 1/7 एंड सेवेंथ टर्म इज 1/6। अब इनका प्रोडक्ट क्या होगा 7 × 6, 42nd टर्म क्या होगा स्टूडेंट्स 1 हो जाएगा। तुरंत आप देख के सॉल्व कर लोगे। सपोज इट इज गिवन 216th term of an AP is 280 and 280th term of an AP is 216, then what is the value of 216 into 280 term? तो आसानी से आप 1 लिखोगे। ठीक है, तो जब भी इस तरह का केस मिले आप देख लो कहीं इनका प्रोडक्ट का टर्म तो नहीं पूछा है, 1 हो जाएगा। क्लियर है? सो याद रखना। लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन, फिर से समझो। Suppose it is given 2028 term is equals to 2048 term and 2048 term is equals to 1/2028 term. Then what is the value of t 2020 into 2040? 1 हो जाएगा। बिल्कुल आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, बस आपको ये ट्रिक याद रखना होगा। Very important for the point of view NTSC and Olympiad students. Okay, so याद रखना। अब ये कैसे होते हैं क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। Like here given 9th term of an AP is 1/7, so it's very simple, 9th term is 1/7 और अभी देखा 9th term का मतलब A plus 8D 1/7 and 7th term is 1/9, 7th term का मतलब स्टूडेंट्स A plus 6D, this is 1/9. Now solve these two equation, A plus 8D 1/7, A plus 6D 1/9. Okay, minus 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 cancel, 8 minus 6 2D and this is 1/7 minus 1/9. LCM 63 होगा स्टूडेंट्स, 9 minus 7, so 2D is 2/63, 2 cancels 2 and the value of D is 1/63. Now substitute D in equation 1, 2 में भी substitute कर सकते हो। A plus 8, D is 1/63, this is 1/7. So students 1/7 ट्रांसपोज किया माइनस 8/63। ओके, LCM क्या होगा 63, 7 9 जा 9 1 जा 9, cancel 8, so this is also 1/63. Okay, now we have to find 63rd term, तो क्या होगा स्टूडेंट्स A plus 62D, A is 1/63, D is also 1/63, so this is 1/63 plus 62/63, डिनोमिनेटर सेम है स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर ऐड कर लोगे 1 plus 62 63, so the answer is 1. Okay, I hope now it is very clear to all of you dear students. Okay, तो 1/m, sorry mth term 1/n, nth term 1/m, then the product, their term of their product हमेशा 1 होगा। Okay, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आप लिख के आसानी से सॉल्व करोगे, परफेक्ट फॉर्मूला है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन। ये डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, यू नीड मोर कंसंट्रेशन, इट मे बी अनेबल टू अंडरस्टैंड इन वन स्टेप, देन you have to try once again, and again if you have any problem then you can clear your doubts on my WhatsApp number. कभी भी आप लोग क्वेश्चन WhatsApp कर सकते हो। ओके, कभी भी क्वेश्चन WhatsApp कर सकते हो, आपको थोड़ा टाइम लगेगा बट यू विल गेट आंसर श्योरली। ओके, दिस इज माय WhatsApp number, फॉर एनी डाउट्स, फॉर एनी clarification you can WhatsApp on this number. Okay, so the second question, very important question बच्चों, ध्यान देना है। m times mth term of AP is equals to, m times mth term of an AP is equal to n times nth term of an AP. Find its m plus n terms. देखो स्टूडेंट्स, फाइंड क्या करना है, m plus n। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, a plus m plus n minus 1 into d होगा। भाई बिल्कुल होगा, देखो nth टर्म क्या, a plus n minus 1 into d, so m plus n minus 1 क्या होगा,
m प्लस nth टर्म, तो n के प्लेस पे पूरा m प्लस n लिखा। अगेन आइदर वी फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड d और फिर सब्स्टिट्यूट करें तब वैल्यू आएगा। और अगर इस पूरे की वैल्यू हमको पता हो जाए बच्चों, if we are able to find the value of a plus m plus n minus 1 into d, it means this is m plus nth term. Let us see, कंडीशंस दिए हैं, सॉल्व करते हैं बच्चों। सो m टाइम्स mth टर्म यही होगा इज इक्वल्स टू n टाइम्स nth टर्म। ओके, सो m टाइम्स mth टर्म का मतलब a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, एंड n टाइम्स nth टर्म का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा सा सॉल्विंग टफ है, ध्यान देना है बच्चों। ये am हो गया, ठीक है, m माइनस 1 इंटू डी एम हो गया, an, फिर n से मल्टीप्लाई करोगे n माइनस 1 इंटू n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं nd हो गया। ओके, सारे टर्म्स ट्रांसपोज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। am सभी ध्यान से देखेंगे फिर समझ में आएगा, दोबारा मैं समझाऊंगा, अच्छा क्वेश्चन है। माइनस an एंड दिस इज m माइनस 1 इंटू डी एम, इसको भी ट्रांसपोज करेंगे बच्चों, माइनस n माइनस 1 इंटू डी एन इज इक्वल्स टू 0। फ्रॉम हियर a इज कॉमन, सो m माइनस n। ओके, फ्रॉम हियर d इज कॉमन, ध्यान देना बच्चों, d कॉमन है, सो हियर इज m माइनस 1 इंटू m माइनस n माइनस 1 इंटू n। ओके, सो दिस इज a m माइनस n, ओके, प्लस d, मल्टीप्लाई करना है बच्चों, m इंटू एम, एम स्क्वायर माइनस m वन जा 1, माइनस n इंटू n माइनस n स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस n वन जा n। क्लियर है? m माइनस 1, इसको बच्चों हम लोग एक साथ लिखते हैं स्क्वायर टर्म्स, ध्यान देना ये भी डेरिवेशन है, बाकी एज इट इज लिखा। नाउ वी नो दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a plus b, that is m plus n and m minus n. From here minus 1 is common, m minus n हो जाएगा, this is 0. Now students look, m minus n is common, सारे terms में common है, so m minus n is common। अब बचा क्या, यहाँ इस टर्म में a बचा है, ये common हो गया, so यहाँ पर बचा m plus n, इस टर्म से कॉमन माइनस 1 है, और स्टूडेंट्स d को एज इट इज लिखा। सिंपल है, कॉमन लेने तो आता होगा दोस्तों। m माइनस n इज कॉमन, सो यहाँ a बचा, m माइनस n इज कॉमन, m प्लस n इज हियर, फ्रॉम हियर दिस इज कॉमन माइनस 1, और d को हमने बाद में लिखा। नाउ अगर हम लोग 0 से डिवाइड कर दे, कॉमन है, तो a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 0 अपॉन m माइनस n होगा, and this is 0। okay, so what is the value of, इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, m प्लस n। देखो m प्लस n टर्म का फॉर्मूला a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना होगा, एंड आई विल मेक इट अंडरस्टैंड अगेन। नाउ आई थिंक वैकेशंस भी आपके ऑनलाइन क्लासेस के होने वाले हैं, जो स्कूल्स में चल रहे थे। आप लोग नेक्स्ट वीक तक एक NTSC का बुक खरीद लेना है स्टूडेंट्स, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। बाकी सारी बातें आपको पता है, आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिडायरेक्शनल, यू हैव टू बी अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। ओके, लेट अस सी अगेन, क्वेश्चन इज गिवन दैट m टाइम्स mth टर्म ऑफ एन AP is equals to n times nth term of an AP is equals to, sorry, given, and we have to find m plus nth term। तो mth tm का फॉर्मूला लिख दिया, tn का फॉर्मूला लिख दिया। अब इसका मतलब स्टूडेंट्स हमको वैल्यू फाइंड करना है a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी का, ठीक है। मल्टीप्लाई किया a इंटू m am, m इंटू डी से मल्टीप्लाई किया a इंटू n an, और यहाँ पे भी nd हो गया। सारे टर्म्स ट्रांसपोज किया, ए वाले टर्म्स को एक साथ लिख लिया फ्रेंड्स, और ये एज इट इज है, इधर 0 हो जाएगा। फ्रॉम हियर ए इज कॉमन, m माइनस n। ओके,
From here d is common, so m minus 1 m, n minus 1 into n, m into m square minus m वन जा m, n into n स्क्वायर, और ये माइनस है और माइनस माइनस प्लस n, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉमन, a प्लस बी, a माइनस बी लिखा, यहाँ से माइनस 1 कॉमन, सो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये देखो स्टूडेंट्स, m माइनस 1 m माइनस n कॉमन, बचा a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 0 से डिवाइड कर दोगे, बचा ये, और ये t m प्लस nth टर्म का फॉर्मूला है, इट इज इक्वल्स टू 0। सो इट इज ऑल्सो अ फॉर्मूला, याद रखना है बच्चों। सपोज इट इज आस्क्ड 17 times 17 terms of an AP is equals to 18 times 18th term of AP, then what is the value of 17 plus 18th term? So it is equals to 0। ठीक, वही है ना, m टाइम्स m क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो 17 टाइम्स 17 टर्म्स, 18 टाइम 18 टर्म्स, तो इनका सम क्या होगा, इनके सम वाला टर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज 0। ओके, क्लियर हो गया। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है बच्चों, एक बार फिर से रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th and 6th term of an AP are 6 and 5, find its 11th term। So students, let us see, 5th term is given 6, 5th term क्या होगा, a plus 4d, आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे, and 6th term is given 5 and this is a plus 5d, ये क्या होगा 5। okay, so students, this is a plus 4d equals 6, a plus 5d equals 5। okay, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया, -5 + 4 -d, 6 - 5 1 हो जाएगा, सो d इज -1, d को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे, a plus 4, d की वैल्यू -1, दिस इज 6, a की वैल्यू 6, और ये -4 इधर आएगा, +4, दिस इज 10। So students, we have to find 11 terms, so this is a plus 10d, a is 10 and d is -1, so plus minus minus, so 11 term is 0। okay, तो 5th term क्या है, 6 है, 6th term क्या है, 5 है, दोनों का सम कितना, 0 हो जाएगा। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, बड़े अच्छे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये सब याद रखना है आप लोगों को, यू हैव टू लर्न इट, बिल्कुल याद रखना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, कल से लाइव क्लासेस स्टार्ट, ठीक है, एसिड बेसिस सॉल्ट्स, और उसके बाद मैथ्स में शाम में सेम शेड्यूल रहेगा, ठीक है। बाकी जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उनको और अच्छे वे में और इम्प्रेस्ड वे में आपको मिलेगा, ठीक है, इसी चैनल पे मिलेगा, आई नीड सम टाइम। ओके, आप लोग रिवाइज करो, पढ़ो, बिल्कुल 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 सिर्फ पढ़ाई करना है। ओके, बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन अदर देन हार्ड वर्क। ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं नया लेक्चर के साथ। थैंक यू एंड कीप योर